آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور آج بڑا ہی خوبصورت دن ہے مدر ڈے۔ مدر ڈے مائیں تو بہت خوش ہوں گی، بچے بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، ہاتھ وہ ہا سکتے جی بھی۔ میں تنوں دسنا چاہنا آج دا دن ان ماما دا نہیں، سارے دن ماما دن دے۔ آمین۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھول لیجئے۔ حزقیل اس کا 16 باب اور اس کی 44 آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، سب نکال لیجئے۔ نکال لیا ہے؟ اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، دیکھ سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ آمین۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام پڑھے، سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خدا ان کی زندگی بخش کلام میں یہ حوالہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے، تاکہ اس مضمون کا ہم نام دیں گے، تاکہ جیسی ماں ویسی اولاد، ویسے بچے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ بہت ساری مثالیں دیں گے اور مثالیں دے کر کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ لیکن خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ تو پیٹ کے پھل میں بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، وہ سب خدا کی نظر میں اولاد ہیں، اور اولاد بے شک بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ خدا کی نظر میں برابر ہے۔ اور میں یہ آج مدر ڈے کے حوالہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، تاکہ آج کا دن صرف ماؤں کا دن نہیں، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں اور زندوں کی زمین پر سلامتی سے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کے بدولت ہے۔ کیونکہ جو ہماری صورت ہے، عقل ہے یا صورت ہے، یہ سب کچھ کن کی بدولت ہے؟ ماں باپ کی بدولت۔ کیونکہ جب ہم بے وجود مادہ تھے تو تب خدا نے ہمارے ماں باپ کو ہمیں بخشا اولاد کی صورت میں، اور اس بے وجود مادے کو خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور اس کو خدا نے عقل بھی دی اور صورت بھی دی۔ ہیلیلویا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ بچے بتائیں گے آج کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت اور نصیحت کر جو بوڑھے ہو کے بھی اس راہ سے نہ ہٹے جس راہ پہ تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ جب ہم نصیحت اور تربیت اپنی اولاد کی کریں گے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، آج کا جو حوالہ ہے کہ جیسی ماں ویسے بچے، ویسے بچے، ویسے بیٹیاں اور بیٹے۔ کیوں یہ حوالہ لکھا گیا؟ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے۔ جب اس کلام کو ہم سیکھیں گے تو ہم سب بابرکت ہو جائیں گے، تاکہ ہم سب جتنے باپ بیٹھے ہیں، جتنی مائیں بیٹھی ہیں، ہم سب ایک ہی توقل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، نیک ہوں اور ہمارے تابع رہیں۔ اور تابع رہنے کے لیے، بچوں کو تابع رکھنے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑے گا، پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ جب ہم شادی کی رسم میں باندھے جاتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے، اور برکت دے کے خدا ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے، اور وہ اس روح زمین پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب آپ حنا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خدا اسے اولاد نہیں دیتا، لیکن جیسے اسے اولاد نہیں ملتی، بہت سا وقت گزر جاتا
होता है, लेकिन फिर भी वो खुदा के कलाम के और खुदा के घर के साथ मुतफिक रहती है, झुकती है, दुआएं करती है, इबादतें करती है और कभी ऐसा शिकवा गिला नहीं करती जो खुदा की हजूरी में अच्छा ना लगे। लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश जरूर है कि खुदा मुझे औलाद बख्शे, खुदा मुझे औलाद बख्शे। और हर औरत के लिए ये जरूरी है ताकि खुदा जो उसे औलाद दे, और ये जरूरी है क्योंकि फलदार जो टानी होती है खुदा उसे पसंद करता है, खुदा उसे बरकत देता है। और यही आदम से खुदा ने कहा, जाओ फलो फूलो और जमीन को मुरो भरपूर करो। और मेरे शिशो, खुदा ने यह बरकत दी है। और जब हन्ना की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हन्ना जैसे वफादार खुदा के साथ रहती है, तो फिर खुदा उसे औलाद जैसी नेमत देता है और उसकी दुआओं का जवाब देके उसे नबी बख्श देता है। खुदा अपना बंदा उसे देता है और सामुएल नबी खुदा ने उसे दे दिया और उसने बहुत सारा काम किया और खुदा ने उसे बरकत किया। लेकिन ये सब कुछ माँ की दुआ की बदौलत होता है। आमीन। और माँ नसीहत और तरबियत अपने बच्चों को करती है कब? जब उसकी वो गोद के अंदर होता है। यहूदी शरीयत के मुताबिक अगर आज आप गौर करना चाहेंगे तो मैं उन माओं को नसीहत करना चाहूंगा, जैसे खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत नवाज देता है, बरकत दे देता है, उन्हें पता चल जाता है ताकि खुदा ने हमें यह बरकत दे दी है, अब हम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और मेरे चीजों, वो क्या करती हैं माएं? वो माएं हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करती हैं, हम्मद के गीत गाती हैं, हम्मद के गीत गा के खुदा के कलाम को स्टडी के अंदर रखती है ताकि जो खुदा हमें औलाद दे, ताकि वो औलाद ऐसी हो, वो औलाद खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। कब से वो प्रैक्टिस करना शुरू करती है? जब औलाद अभी पेट के अंदर है, अभी वो दुनिया के अंदर नहीं आई। यहूदी शरीयत के मुताबिक ऐसी माएं, और इस तरह की जो माएं थी, खुदा ने उन्हें नबी, पैगंबर, रसूल अता किए और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की मनाती की। उनके वसीला से खुदा का कलाम लिखा गया। इनका पीछे जो हाथ था वो माओ का था। मेरे जिसों में ये कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास हैं। ये बच्चे अब आप जिस धागे से बांधेंगे ये बंधे रखेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि संगल लेके भी इन्हें बांधे तो ये नहीं बांधे जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों से माँ बाप बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं ताकि ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपनी औलाद की तरबियत और नसीहत कर। और इसलिए खुदा कलाम करता है कि जैसी माँ वैसे बच्चे। अगर हम खुद बाबरकत हैं तो फिर हमारे बच्चे भी बाबरकत होंगे, फिर हमारे बच्चे वफादार होंगे, फिर हमारे बच्चे खुदा के कलाम के आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। आज बहुत सारे खानदान इस मुसीबत, इस परेशानी में, इस उलझन में फंसे हुए हैं। रो रो के खुदा के खादमों से दरखास्त करते हैं और कहते क्या हैं, भाई साहब हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। आज सबत का दिन है, खूबसूरत दिन है और मदर डे है। और आज भी आप चौकों बाजारों में जाके देखें, बेटियां फिर भी चर्चों के अंदर हैं, लेकिन चौक भरे हुए हैं लड़कों से। पान खा रहे हैं, नस्वार खा रहे हैं और रंगबाजी की हालत में एक दूसरे के साथ वो लड़ाई झगड़े मंसूबों के साथ खड़े हुए हैं। चौक भरे हैं इस टाइम। और ये बच्चे अगर इन्हें उस वक्त नसीहत और तरबियत की होती तो आज ये चौकों में ना होते,
बल्कि किसी ना किसी काम पे ये स्टैंड होते या खुदा के घर में आज माँ बाप के साथ बैठे होते, क्योंकि खुदा का कलाम राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। अगर ये चिराग हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर हर ठोकर, फिर हर बुराई से हम बच जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो चुके हैं, अगर आप बाबरकत जिंदगी बसर करना चाहते हैं, आने वाले मुस्तकबिल को नसीहत और तरबियत करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों फिर खुदा के ताबे हो जाएं, फिर खुदा के ताबे हो जाएं, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो बाबरकत है। आप खुदा के कलाम में खुदा ने एक नबी को भेजा, समसून की जिंदगी पर हम सब गौर करते हैं, देखते हैं खुदा ने कितना जोर, कितनी ताकत उसे बख्शी, और खुदा ने उसके माँ बाप के वसीला से उसके साथ कलाम किया कि तूने गैर कौमों में नहीं जाना, गैर कौमों में शादी नहीं करनी। लेकिन फिर भी वो खुदा का बंदा माँ बाप की नसीहत और तरबियत को पीछे करके फिर भी वो उस तरफ गया जिस तरफ खुदा ने मना किया था। और फिर क्या हुआ, वो इतनी ताकत का मालिक और खुदा का नबी होते हुए भी वो ठोकर का बाइस बना। सब ताकत जाती रही और सब गुरूर जाता रहा, और फिर वो ऐसी जिंदगी उसने खुद खुदा से कहा कि अब तू मुझे मौत दे दे। क्यों? क्योंकि जिस तरफ खुदा नसीहत और तरबियत करता है तो फिर हमें उस खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना चाहिए। माओ की जिंदगी पर हम गौर कर रहे हैं, माओ का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों की जिंदगी पर, और खुदा कलाम करता है कि जैसी माँ वैसे बच्चे, वैसे बच्चे। अगर माँ हर वक्त बुड़बुड़ाती रहे तो फिर बच्चे कैसे होंगे? फिर बच्चे कैसे होंगे? बाप सुबह चला जाता है काम पे चला गया, सारा दिन काम पे रहा, शाम को आया, घर की सूरत हाल देखी, जो बंदोबस्त करना था वो किया, और बंदोबस्त करके थोड़ी देर बैठा, दुआ की, कलाम पढ़ा, सो गया। लेकिन सारा दिन बच्चे माँ के हाथ के नीचे रहते हैं, बच्चों पर माँ का साया ज्यादा रहता है। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि जैसी माँ वैसे बच्चे। अगर माँ रास्तबाज है, अगर माँ खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करती है, तो मेरे अजीजों फिर वो घराना बाबरकत होगा। फिर उस घर के जितने फर्द होंगे उनका घर से बाहर जाना भी मुबारक होगा, और बाहर से घर में आना भी मुबारक होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा कलाम करता है। यहूदी शरीयत के मुताबिक यही हम सीख रहे हैं। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो वो पता क्या करती है, उसके कान के अंदर वो हम्मद के गीत गाती, वो खुदा की शुक्रगुजारी करती, और शुक्रगुजारी करने के साथ वो खुदा के कलाम की एक छोटी सी आयत उसके कान में गुनगुनाती, और वो अपने बच्चे को नसीहत और तरबियत पता क्या कर रही है, वो इस बात पर ईमान रखती है कि मैं अपने बच्चे को जो दूध पिला रही हूं ना, मैं ये शरीयत का दूध पिला रही हूं। हालेलुया। मैं ये शरीयत का दूध पिला रही हूं, और जो बच्चे ऐसी परवरिश पाएंगे वो बच्चे ऐसे होंगे ताकि वो माँ बाप के लिए भी फक्र का बाइस होंगे और दुनिया के लिए भी फक्र का बाइस होंगे। लेकिन जो माँ बाप कहेंगे 6 दिन छुट्टी, मेरे भाई साहब कहते होंगे ने, ते 7वें दिन आराम। 6 दिन छुट्टी ते 7वें दिन आराम करना है भी, 6 दिन तो पहले वेले है। बहुत सारे हमारे खानदान ऐसे हैं भी, आज सबत दा देने, द्वार दा देने, आज सारी नींदर पूरी करनी है। तो जो माँ बाप ही सो जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे बेदार होंगे? उनके बच्चे कैसे बेदार होंगे? अगर उनके बच्चे बेदार देखना चाहते हैं, अगर वो बेदारी चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद उठना पड़ेगा और घुटनों के बल होना पड़ेगा और खुदा से मिन्नत
करनी पड़ेगी और खुदा के कलाम की नसीहत और तरबियत अपने बच्चों को करनी पड़ेगी। फिर वो बच्चे बाबरकत होंगे और बच्चों के लिए फिर माँ बाप भी बाबरकत होंगे और बच्चे उनके लिए बाबरकत होंगे। आए मेरे साथ एक और हवाला देख लीजिए। इफ्सियों के नाम पुलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सब निकाल लीजिए। लिखा है, ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर अंदराज हो। खुदा उनके कलाम पढ़े सुने और समझे जाने और खुदा उनकी बात बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये फर्जंदों के लिए हुक्म है, उन बच्चों के लिए हुक्म है जो बच्चे आइन और कानून सीख चुके हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम जो है वो बाबरकत हो चुका है, जिन्हें खुदा के कलाम की नसीहत और तरबियत हो चुकी है। उनको ये हुक्म है कि ऐ फर्जंदो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, उनका हुक्म मानो, उनके ताबे रहो। उन्हें ये ना कहो कि भी अब्बा ते अम्मा तुसी हुण बुढ़े हो गए, तानू केड़ी अकल है, तानू केड़ी अकल है। क्योंकि वो खुद समझते हैं कि अगर हम परवरिश पा चुके हैं, जवान हो चुके हैं, कि सदा माँ बाप का वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज हम जवानी की हालत में हैं, तो अगर बच्चे हमारे बराबर हो चुके हैं, तो जाहिर है माँ बाप कमजोरी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में जाएगा। और जैसे बच्चे जवानी की हालत में आ जाते हैं, तो वो बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि अब्बा अम्मा उन तेनू का दी समझ है। यहूदी शरीयत के मुताबिक ये लिखा है, मूसा से खुदा कलाम करता है, ऐसे बच्चे जो हैं वो जरूर है कि कत्ल किए जाए, वो मारे जाएं। खुदा का कलाम बयान करता है और ये हवाला आपको मिल जाएगा मरकस 7 बाब की 8 आयत में, ये हवाला आपको मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जो माँ बाप को डांटते हैं, जो उन्हें कहते हैं तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कोई समझ नहीं, तुम्हें कोई कुछ अकल नहीं है, ऐसे बच्चे वो बयान करेंगे जिनकी नसीहत और तरबियत बचपन में नहीं हुई। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फरमाबरदार रहें, आपके बच्चे ताबे रहें, आपके बच्चे खुदा के आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, तो फिर लिखा है, ऐ फर्जंदो अपने माँ बाप की इज्जत कर और उनके ताबे रह। और फिर लिखा है, यह पहला हुक्म है, यह खुदा का कलाम का पहला हुक्म है कि ऐ बच्चों अपने माँ बाप के ताबे रहो, उनकी इज्जत करो। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बच्चों, ये बड़ा ही खूबसूरत वक्त है, ये बड़ा खूबसूरत वक्त है जिनके पास माँ बाप हैं, जिनके पास माँ बाप हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जब हम छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे हैं, तो खुदा को नहीं उतना जानते, उतना नहीं पहचानते। उनके माँ बाप जो है वो उनके लिए सब कुछ है। और बच्चा जब बाहर से आता है और बच्चा आके माँ से कहता है कि ए माँ, ए अम्मा, मामा मैनू ए चीज़ चाहिए, तो मामा ने उनके सिर ते हाथ रख के कहता ना कि बेटा तेनू मिल जाएगी, तो बच्चा इन्ना ज़्यादा मतलब उनके अंदर हौसला ते ईमान होता है कि मामा ने मैनू ये गल कह दी है, मैनू ये चीज़ मिल गई है, इन्ना ज़्यादा। और मैं समझना कि खुशकिस्मत वो बच्चे ने जिन्हों ने सिर्फ माँ बाप ने, ताकि माँ बाप ऐसी बरकत है कि जिन्हों बयान नहीं किया जा सकता। जिनके पास इस वक्त नहीं माँ बाप, उनसे पूछो कि माँ बाप की कदर क्या है। मेरे अज़ीज़ों, ये खूबसूरत वक्त है,
یہ خوبصورت وقت ہے. اگر آج آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے, اگر آج آپ ماں باپ کی جو تابعداری کریں گے, تو پھر زمین پر آپ کی عمر دراز ہوگی. خدا کا کلام فرماتا ہے پھر آپ کی زمین پر عمر دراز ہوگی, اور خدا آپ کی عمر کو بڑھا دے گا, لمبا کر دے گا, اور آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی. اگر فرزند جو ہیں وہ ماں باپ کے تابع رہیں گے, اگر آج آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آج نہیں کہنا کہ آج ہی مدر ڈے ہے, آج ماما کو خوش کر لیا ہے, آج پاپا کو خوش کر لیا ہے, تو بقایا دن تے پاپا ماما سارے سال ساڑھے ہی نہیں نا, پھر تینوں پوچھا گے. یہ منصوبہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ منصوبہ غلط ہے. جیسے آج پیار کرنا ہے ماں باپ سے, ویسے ہی سارا سال جب تک وہ زندہ ہیں, جب تک وہ زندہ ہیں, تابع رہیں اور ڈرتے رہیں اور ان کی تابعداری کرتے رہیں. اور ڈرنے کا مطلب خدا کا کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ماں باپ کو لے کے کمبتے رہو. تب ڈرنے کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کو ماں باپ کے سامنے نیچے کر کے اس کے حکم کو ماننا, اس کی عزت کرنا, اور جو ماں باپ نصیحت اور تربیت کرتا ہے اسے ماننا. کیونکہ ماں باپ نے جو وقت دیکھا ہے اس لیول تک آپ ابھی تک نہیں گئے. آپ پریکٹیکل آگے جا کے اپنی عمر کے حساب سے وہ وقت دیکھیں گے جس زندگی سے حصے میں سے گزر کر ماں باپ آگے آ چکے ہیں. اس لیے ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو, میرا بچہ جو ہے وہ بابرکت ہو, میرا بچہ جو میں نہیں اپنی زندگی کے اندر کر سکا وہ اپنی زندگی کے اندر وہ سارے مقام, وہ سارے کام میرا بچہ کر سکے. ہیلیلویا. اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں بہت کچھ کرتی ہیں. گڈیاں تو لکھی ہیں نا, گڈیاں تو آیتاں پڑھیاں نے, آیتاں لکھیاں ہوندیاں نے. ایک آیت بڑی مشہور لکھی ہے, وہ کہتا ہے جن نے ماں باپ نو ستایا انہیں رکشا چلایا. کنے پڑھیا؟ جن نے ماں باپ نو ستایا انہیں رکشا چلایا ہے. تو جن کو کیری ڈبا ہوتا ہے نا, وہ انہیں لکھیا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی بدولت ہے. جن کو ٹرن والی ہے انہیں بیچارے نے لکھ لیا. ماں باپ نہیں چاہتا, ماں باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے کی دنیا کی ہر وہ نعمت, ہر چیز میرے بچوں کے پاس ہو. ماں اپنے بچے نو مارے گی ضرور, ڈانٹے گی ضرور, لیکن کسی دوسرے نو نہیں مارن دے گی, کسی دوسرے نو نہیں مارن دے گی, خود مارے گی, اور مارے گی صرف ان کی نصیحت اور تربیت واسطے. تو جڑے بچے اس نصیحت اور تربیت نو ماں باپ کی ڈانٹ نو برداشت کر کے نے, اج جو سربلند نے, اج جو کامیاب نے, اور اج اس کامیاب زندگی نو بسر کرتے ہیں جنہاں دا ہر انسان خواہش کرتا ہے. لیکن جڑے بچے ماں باپ دے تابع نہیں نے, جڑے بچے ماں باپ تو بالکل ہٹ کے زندگی بسر کرتے ہیں, وہ ساری زندگی ٹھوکر دا باعث نے. کیونکہ اج میرے عزیزوں میں بچے تو انہیں گل سمجھانا چاہنا خاص طور پہ جس جگہ تے ماں باپ نے اس جگہ تے کل تسی کھڑے ہو گے. اگر تسی آج اپنے ماں باپ دے تابع رہ کے انہاں دی عزت کرو گے, انہاں دے تابع رہ کے انہاں دے ہر جڑا حکم ہے انہوں منو گے, عزت کرو گے, تو پھر آنے والے وقت چ تہاڈی اولاد بھی تہاڈے تابع رہے گی, تہاڈی عزت کرے گی. اج جڑا سوال تہاڈے ماں باپ کرن گے کل اس جگہ تے کھلو کے تسی کرو گے. اگر تسی چاہتے جے کہ ساری زندگی اچھی ہوئے, اچھی گزرے, تو پھر اپنے ماں باپ کی ضرور عزت کرو. اسی خدا دے خادم ہوندے ہیں, اسی بہت سارے گھراں چ وزٹ کرنے ہاں, اور اکثر یہ گل ویکھنے ہاں کہ ماں باپ کتھے کتھے بیٹھے نے. بزرگ ہو گئے نے, کرو کر دیتے گئے نے, بزرگ ہو گئے نے, کرو کر دیتے گئے نے, اور کتھے کتھے جا کے بیٹھے نے. جی خدا دے خادمہ نے جگہ مقرر کی نے, وہ اس برکت دا باعث بنتے پے نے, اس دعاواں نو حاصل کرتے پے نے, لیکن اولاد نے کرو کر دیتا ہے. اگر اج انہاں بچیاں نے اپنے ماں باپ نو کرو کر دیتا ہے, تو کل آنے والے وقت چ انہاں دے بچے بھی انہاں نو کرو کڈن گے. اج جڑے بچے ماں باپ دے تابع رہن گے خدا انہوں بڑی برکت دے گا. تو خدا دا کلام سچا ہے تے حق ہے. تو خدا دا کلام ایک گل دستا ہے کہ پھر زمین تے تہاڈی عمر دراز ہوئے گی,
फिर ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ भी मुबारक होगा कि घर च आना भी मुबारक होगा। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आप मुबारक होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दें और माँ बाप को हुक्म को ऐसे मानना शुरू करें कि जैसे ये खुदा का हुक्म है। तो फिर माँ बाप की दुआओं के वसीला से आप हर मुश्किल, हर परेशानी से निकल जाएंगे और आप बाबरकत हो जाएंगे, आप कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। और फिर खुदा कलाम करता है, वो तेरे मांगने से पहले जानता है मेरे बच्चे तू किन चीजों का मोहताज है। खुदा अपना आसमान खोल के हर तेरी जरूरत को पूरा करेगा और तू अपने घर में भी बाबरकत होगा और पर उन लोगों के लिए भी बाबरकत होगा जिनके बीच तू काम करता है, जिनके बीच तू उठता बैठता है। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे और मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों को, माँ को हमेशा खुश रहें और इस वक्त को, इस दिन को हमेशा अपने माँ बाप के साथ रह के खुशियाँ मनाएं। गॉड ब्लेस यू।